Good noon. Good morning, everyone. ठीक है, it's okay. IT team, Chen, Suraj ji, Deep ji, Yes. and myself. We on the first screen. देखो भाई, आज हमने शर्ट भी पहन ली है, बेचारी टी शर्ट थक गई थी बहुत दिनों से, इसलिए जो है we are all on the formal dress. Right. Looks After so nice. many days. Looks nice. Looks nice. Almost after a month. Right. Yes. So let me recapitulate quickly what we intend to do. First thing is that Prashant will make an introductory remark, and then on slide 2, after slide 2, he will hand over the baton to me. All right? Right. Right? Yeah. Fine. So I will run the presentation. I will share the presentation, and once you ask me to go to the next slide, I will go to the next slide. And then once after the second, I can see. Sorry to interrupt, Sandeep ji. I am seeing Korea. So welcome, sir. Oh, Welcome, wonderful. sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Can somebody unmute Unmute. login from Please. Galaxy in 2018 ID? Anirudh, can you do the unmuting for him? Sir, he is not connected his audio yet. Let me send him a note. Can you help Korea sir to connect audio? Yeah, sir, sure. I will. Saurabh, you just contact him and guide him how to turn like this. Well, I just called him. He's saying he's connecting within a minute. Okay. Special. Hello.
Saurav, you please make a note of the question and answer which I have raised, and in case at the end of the FAQ something is missed, then you please raise that flag and bring that into discussion once again. Oh, sure, sir, sure. I think there are a lot of participants now, so and more coming. So there are few people who have logged in with phone. The ID is showing Realme2 Pro or something. So whoever has joined, thanks everyone for coming and joining. I think we should wait for 5 more minutes so that more people can come and join, and then we'll start it. Right. Everyone from Desire except me, Sandeep ji, Gaurav. Can you turn off your camera? Can you guys turn off your camera so that we can quickly? Yes, sir. Hello. Gaurav, can you see the presentation, please? Yeah, I'm able to see. Just keep it on the presentation mode. This is okay. This is okay, na? Yeah, it is okay. It's okay. Okay, wonderful. Mute. मेराज का फोन है था So I think there are a lot of people who have already joined, and I can see Kuriu sir.
So thanks everyone for joining. There are few people who are having issues with joining, so we are helping them, and probably in next 3 to 5 minutes we'll start this session. बिल्डर है उसे, लेकिन बिल्डिंग पूरी कर लेंगे आराम से आराम से। I think sir is online, therefore we must start and let others join. Yes, That sir. will be better. Yes, sir. That will be So, better because we yes, are sir. Yes, sir. exact on time. Sure. So you can Hello welcome and everyone. Hello everyone. We are going to start this. We are going to start this session on public water management, and I think I have most of the people yesterday to explain this session. So this session is all about public water management and what all things we do within public water management and how ESCO model can help in this public water management. This would be the whole topic for today's meeting. Now, can you go on next slide? Sandeep ji, next slide. I have gone already. Yeah. So, sure. So, join. So, welcome everyone for joining on short notice. Welcome everyone for. And a big thanks to. Big thanks to everyone for joining. My special thanks to Kuril Saab. Kuril Saab से बात होने के बाद he guided us कि how we should do it. So that is how all of us are connected here. So from Desire we have Gaurav Kumar Gupta, who is founder and managing director. Myself, Prashant Mishra, Suraj Khandelwal, who is general manager taking of ESCO projects, and Sandeep Garg, who is director advisor to Desire Energy Solutions Private Limited. Now, the speaker for today's session would be Sandeep Garg. And to talk about Sandeep Garg, I think सबने स्टार रेटिंग के बारे में तो सुना ही है. संदीप जी इज वन ऑफ द की पीपल जिन्होंने जो इंडिया में स्टार रेटिंग लेबल्स लेके आए हैं. सो एंड ही वाज अर्लियर he was a former economist at Bureau of Energy Efficiency. He has also worked with ESL, and in 2010 he was being awarded by NDTV Green Award. So he's the one who is going to explain the benefits of ESCO, all of us, and then this would be a 30 to 35 minute session. Based on that, whatever we'll just for those questions and answers, and after that I'll send the same PPT whatever we are showing here. We can share the PPT with everyone of you. Sandeep ji, over to you. Thank you. So my request, since everybody is on mute, I will be very precise and crisp in my presentation. Kuril sir, thank you very much for giving us this time. I know you have other priorities at this juncture also, but very interesting and very informal presentation I'm going to do so that we can all be on the same page.
if you look at the water distribution in many cities, the public water distribution, the water comes from primarily 2, 3, 4 sources. Either it comes from the river, for example, you have Ganga Canal, people pumping water. You have a lake, which is like, for example, Jodhpur. Then you have tube wells, which is slightly interior part of the cities, which are not connected to a very large source. And then you have maybe a dam or etc., which are used for supplying water to a typical city. And the diagram here shows how the water comes in and how the water goes into the distribution channel through a filtering process, through water tanks, and then finally into the pumping to the houses. If you look at one of the challenges, you see, at least me and Gaurav have been doing this for almost many years, and we have started to take what are the critical issues as far as the water-related issues in the public distribution system is concerned. I have the list of few pump houses in UP which are of 1963 make, and some are even prior to that because the pump has been rehabilitated for a longer duration. So one of the challenges in the system is that you have old machinery needs a complete overhaul. What does it impact? Impacts your electricity bill, impacts your operation and maintenance practices. Probably large breakdowns and continuous breakdowns, repeated maintenance, then operating costs are high. And if you collaborate with this, you have to go back again and again to the government asking for funds to get their approval and involve them into the rehabilitation process. These are the most challenging. The second one is because the cities are expanding at a very large space, and therefore you need to supply water to the last end of the pipeline. And if you look at the current, the smart city mission and the city upgradation mission project like Amrit, rehabilitation and refurbishing of the equipment is at the center focus of most of the processes. So why energy cost is so important? Because if you run a pump, probably the cost is not important. If you look at a 180 kilowatt pump, motor pump combination, maybe probably a 3 lakh rupees of a cost. But if you run the operation cost of that over lifetime period of is 90% is the electricity bill, and then the maintenance cost is in the range of 5 to 10%. So it is not the cost of the equipment which is more important, it is the electricity cost which is being consumed. Each rewinding there is an increase almost about 2% additional electricity which you have to pay, and which is a greater cost for concern. And you look at the motor rewinding process or the pump rewinding process or the pump O&M process, mostly the motors are running without any load, they get burnt out, nobody is ready to take care of that. I think that is one of the challenge we have identified. In the number of cities we have done this type of work, probably on a ESCO mode. Then from a citizen's point of view, what do you require? I want a uninterrupted supply, I want clear water, I want a bacteria-free water, and all these things, how does it relate? Because the challenges with the people who are into the pumping system and water distribution is that there are a lot of requirements and the demands being put up by the citizens to you, and water is also getting primarily not fixed up because of these challenges. If you look at this report, I'm giving you some electricity numbers. Today, the total production is about 370,000 megawatt or 370 gigawatt. And the energy saving potential is about 18%, which is about 70,000 gigawatt. If you multiply with this number with the value terms, it becomes a huge number, almost more than 1 lakh crore. But if you focus only on water, almost every city on an average, the smaller cities pays on an average about 15 to 20 crores. Smaller, I'm talking of a C-class city, or 15 to 20 crores of the electricity bill. And a larger city, I'm staying in from Noida or Delhi. Delhi is too huge, but Noida is paying about 350 crores a year only in terms of electricity bill. So it means what happens is
the electricity bill is primary focus of this ESCO process. What are the saving potential? The saving potential on a large scale is almost about 10,000 crores. The number have been deflated just because we don't want to exaggerate the numbers and tomorrow come to conclusion that it's not being done. Welcome. Now, why do we do this? Why are we doing this? First of all, why Desire Energy is getting into this business? If you look at the Energy Conservation Act of 2001, and I remember this act by heart, so therefore I can speak with authority on this. This act allows the state to undertake the energy conservation method and measures to cut down their electricity consumption. And the power consumption of particularly municipality and water supply body is also covered under the ESCO, under the Energy Conservation Act, and the people who have been authorized to do this is an ESCO. I remember creating the first ESCO conference in 2004, asking people to participate and understand the process. I and Gaurav are in this mission to tell people what this ESCO can do, because the focus of an ESCO is to bring in the capital as well as the technology for you to undertake this measure without any cost on the municipality or for the distribution agencies. So what these ESCOs are all about? ESCOs are the energy saving company, primarily we call it, and they are accredited by Bureau of Energy Efficiency to undertake the upgradation of infrastructure. Okay, so we do pre-auditing, we do energy analysis, we do design development, and based on the performance guarantee, we are undertaking the ESCO process. The cost of the services provided by the ESCO is included in the total energy saving which are going to accrue from the project. Am I okay, sir? Kuril sir? Am I okay? Wonderful. Your thumbs up will create me a good message. The thumbs up will give you a good message. So what do we do? We are, for example, a city spends a X amount of rupee on the energy bill. So what we guarantee is that we'll give you 10% of saving. For example, if your city bill is 20 crores or 15 crores. So what we are guaranteeing is that we will give you 10% of guaranteed energy saving in the very project implementation year. And based on that, what we decide is that what the kilowatt per kL of the baseline which gets created. How do we do it? We do it by selection of energy efficient pump, and then we create the entire game of services around those project management. Say for example, I was giving this example, your electricity bill is 15 crores and you spend almost 10%, which is 1.5 crores on your O&M practices. This is the most important slide in the presentation, sir, and I want your attention on this. So what do? We bring in the capital. First of all, we do the investment. Out of this investment, we guarantee that after the investment, we will, save 1.5 crores of electricity bill. Also, once the investment process takes care, we will be not charging an O&M once the process is over. So it means in the very first year, say for example, your 15 lakhs is your 10%, 1.5 crores your O&M cost, and your electricity bill is 15 crores. So you get a saving of 3 crores. So in total up over a period of 10 years, total saving comes to is 30 crores. It means over the period of the lifetime of the project, the model you get is that you are not making any investment. You are not making any investment. I am making the investment and guaranteeing you that this model is workable. So what do we do? The only this model is now what is that? Hanji? Hello? Yeah. सर इसमें दो चीजें बड़ी होने लगी हैं अभी, और हमारा ये अभी रिसेंट इसलिए हाइब्रिड मॉडल बना, बहुत सारी चीजें भी होने लगी हैं.
कि म्युनिसिपैलिटी के पास पानी की क्वालिटी और पानी का जो सिस्टम है वो भी वो अपग्रेड करना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि हम इन्वेस्टमेंट भी करें और साथ में प्रेशर, फ्लो मीटर, स्काडा सब लगाएं। तो स्काडा की एनालिटिक्स जहां लगी है वो हम अपने आप बना के देते हैं, हमारा उसका सॉफ्टवेयर है, तो आपको बाद में बताएं। लेकिन क्या है, आप चाहते हैं पानी सफाई भी हो जाए, उसका मेजरमेंट भी हो जाए, उसके अंदर क्लोरीन भी लग जाए। तो ये हाइब्रिड मॉडल है, क्योंकि ये चीजें हम नहीं करते बिकॉज ये कैपेक्स है। इस कैपेक्स मॉडल में क्या है, हम आपने जितना प्रोजेक्ट एस्को का वो हम करेंगे, लेकिन एडिशनल इक्विपमेंट अगर आप कोई लगवाना चाहते हैं तो वो आप सबसे कोट ले लीजिए और टेंडरिंग प्रोसेस में उसकी लोएस्ट कॉस्ट डिफाइन कर दीजिए। तो ये दोनों मॉडल अभी प्रोसेस में चालू करवाया हमने बहुत सिटीज में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि 10-15 सिटीज में हमने ये प्रोसेस चालू किया है, जहां म्युनिसिपैलिटी ने एक बार पैसा लगा दिया, हमारे बेसिस पे हमने इक्विपमेंट कॉस्ट किया, L1 कॉस्ट में सारा प्रोजेक्ट आ गया, तो आपकी कॉस्ट भी कम हो गई टेंडर से, और साथ में 10 साल के लिए आप फ्री होगा, क्योंकि आपको उसके ऊपर कोई O&M नहीं देना है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप पीएच मीटर खरीदते हैं या पीएच या क्लोरीन इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो आपको हर साल उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। तो वो भी आप इस प्रोसेस में हाइब्रिड मॉडल में उससे भी मुक्त हो जाएंगे। तो मैं जो है समराइज कर रहा हूँ, ये आपके पास कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं है अपग्रेड करने के सिस्टम की। इसको प्रोसेस में आपको पंप का कोई O&M नहीं देना है। अगर आपको कोई कैपेक्स लगेगा तो हम लगाएंगे। कल जो है आपने कहा कि मेरे पंपिंग सिस्टम में लगाना है और लगाने के लिए मुझे अब एक एडिशनल पंप लगाना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगाना, वो हम लगाएंगे। ठीक है। नाउ सबसे बड़ी स्थिति क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आपकी मैन पावर अलग हो जाए, आपकी मैन पावर का काम रेवेन्यू कलेक्ट करना हो जाए, ना कि हमारे इस रेवेन्यू को, क्योंकि रेवेन्यू आप बचा नहीं पाते बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन प्रैक्टिसेस। हम इस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को जो कि 10% आपको दे रहे हैं, उसके अलावा आपका एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है बाय कलेक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल विच यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट फॉर मेनी मंथ्स टुगेदर। हम एक आप ये देखेंगे स्लाइड के लास्ट एंड पे नीचे लिखा है स्मार्ट वाटर मीटर, हम वो भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हम वो लगा के वो रेवेन्यू मॉडल भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी आपकी होगी। हम आपको पूरा टेक्निकलाइज और मीटरिंग बिल मंथ ऑन वाटर कंजम्पशन भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आप कहीं पायलट करना चाहें तो वो भी फिजिबिलिटी है। हम ये 10 साल के मीटर की गारंटी देते हैं, उस मीटर को यूज करके आप अपना पानी का बिल भी बना सकते हैं। तो आपके पास एक हो गया रिलायबल वाटर सप्लाई। फिर हम आपको पूरा रिमोट मॉनिटरिंग देंगे, जो आप हर पंप का ऑपरेशन, ऑन ऑफ, टाइमिंग, उसको देखना, उसको समझना, ये सब आप कर सकते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जो अभी आपको नहीं कर पाते और डिस्कॉम का रिक्वायरमेंट है, आप 0.9 कह रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम आपको 1 तक ला के देंगे तो उसको हम शेयर कर सकते हैं। फिर एनर्जी, वाटर कंजम्पशन और ये सब चीजें जब आप करेंगे, तो अभी हमारे एक प्रोजेक्ट को गुजरात में यूनियन यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड किया है ओनली ऑन दिस प्रिटेक्ट, क्योंकि हमने सिटी का पानी का कंजम्पशन भी कम किया है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम किया है। तो सिटी लेवल कम होने से सिटी को अवार्ड किया गया है पेरिस में, और वो सिटी के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने जाके उसको अवार्ड को कलेक्ट किया। तो ये सब चीजें एडिशनल बेनिफिट हैं अगर आप सिटी लेवल पे देखें। हम क्या क्या करेंगे, एक तो हमारे पास इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज है, पंप सर्किट, पंप और उससे रिलेटेड कुछ भी है वो हम इसके अंदर करेंगे। एनर्जी एफिशिएंट पंप सिलेक्शन करना है, किस करना है, कौन सी कंपनी बढ़िया बनाती है, कौन सी करती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे एक हमने किया है, उसमें राजस्थान में रूरल वाटर स्कीम है। उस स्कीम में आप समझिए 2 लाख किलोमीटर की तो पाइपलाइन है, 35 पंप हाउसेज हैं, है ना, 500 किलोवाट उसकी पंपिंग कैपेसिटी है, और साथ में उसका पूरा पैराफेरनालिया है जो कि वहां हम सप्लाई करते हैं, और पानी को बेस्ड ऑन एस्को मॉडल ओनली। तो उसके लिए जितनी इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज लगी, उसकी डिमांड कंजम्पशन बढ़ती है, क्योंकि पानी की कंजम्पशन सीजनल है और चेंज होती रहती है। तो सक्शन डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करना है,
डिजाइन करना है, कुछ चेंज करना है, वो सब आपका हेडेक खत्म, वो पूरा हेडेक एस्को कंपनी करेगी। हम आपको ये डेटा मॉनिटरिंग और एनालिसिस के टूल देंगे, आप देख सकते हैं किस महीने में कितना पानी जा रहा है, उसका कंजम्पशन क्या है, इनिशियल कैपेसिटी। आपका काम सिर्फ पानी अरेंज कराना है, आप इन सब चीजों से तो जाएंगे, आपका काम है हम आपको पानी अरेंज कराओ। चूंकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आप लोग ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ ऑपरेट करते, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी लिमिटेड है, इसीलिए उनके पास जो हमारा ये जो प्रोसेस है डिजायर मेंटेनेंस एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें हम पूरे प्रोसेस में आपको ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज कब खराब हुई है, कब लगेगी, क्या चेंज हुआ, उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। ये सब चीजें आप ऑनलाइन देख सकते हैं। 1 second, please don't change it. हाँ, now you see, और फायदे ये हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा इसके बाद। इम्प्रूव पंपिंग एफिशिएंसी मिलेगी, कंप्लीट सिस्टम ऑटोमेशन मिलेगा, और अगर आप सेकेंड लेवल में चाहिए तो मीटरिंग भी आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज देन योर मैन पावर विल बी फोकस ऑन क्रिएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स rather than getting into daily operational issues. The manpower can be used for creating capital projects and making bigger revenue into the water supply system. आज की तारीख में लोग नल जो है खुला छोड़ देते हैं, तो उससे क्या है, पानी ज़ाहिर होता रहता है। जब उनको पता लगेगा कि पैसे देने हैं और किलोवाट बेसिस पे देने हैं और किलो लीटर के बेसिस पे देने हैं, तो पानी का कंजम्पशन भी कम होगा। तो आप बेंचमार्क भी कर सकते हैं। तो ये पूरे एस्को के आउटकम है। अगर आप देखेंगे स्काडा एक ऐसा टूल है जो अभी आपको खर्च करने के लिए आपको पैसा ज़ाहिर करना पड़ता है। अगर आप एस्को मोड में जाएंगे, दिस टूल विल बिकम एडिशनल एंड विल बी अवेलेबल एज फ्री ऑफ कॉस्ट। सबको ये जो है इंक्लूसिव सिस्टम में मिलेगा। और क्या क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ लगनी है, फ्यूचर में लगेगी, वो सब आपको पता चल जाएगा इन एडवांस। एसेट मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका जितना टूल है, आपका जल निगम और जल स्थान के जितने एसेट्स हैं, वो सब टैग में हो जाएंगे, जियो लोकेशन हो जाएंगे। क्या पंप कैपेसिटी है, कितना पंपिंग है, क्या पंप की वैल्यू है, उनके ऑपरेशनल पैरामीटर क्या हैं, वो सब आपको मोबाइल पे और वेब बेस्ड एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट एस्को के द्वारा आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि ए आपको गारंटीड सेविंग तो आ रही है 10%, उसके अलावा ये सब चीजें आएंगी जो आपने नहीं किया, वो सब एडिशनल आएंगी। मैं गारंटी भी करूंगा सेविंग की, और साथ में आपको ये चीजें फ्री भी मिलेंगी जो आप अभी करने के लिए अपने पैसे या अपने टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एडिशनल टेक्नोलॉजी का जो टूल है, ये आपको फ्री मुहैया कराऊंगा एज पार्ट ऑफ दिस सर्विसेज। जैसे आप ये देखिए, जियो टैगिंग क्या है, अभी आपका एसेट जियो टैग नहीं है कोई भी, तो जियो टैग कैसे होगा भाई? मेरा यूपी जो है सहारनपुर से शुरू होता है ना, इधर मैं देखूं तो सहारनपुर से शुरू होता है और बलिया तक जाता है। अब इसका एसेट कैसे मैं टैग करूं, कैसे बताऊं कि कौन सा एसेट? हो सकता है कल को आप एक एसेट को यूज करके दूसरा एसेट, एक पंप जिसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल जहां पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उसका पंप की रिक्वायरमेंट हाई है, लेकिन आपने नया पंप खरीदा है वहां 2 साल पहले, तो आप उस एसेट को मूव करके दूसरी जगह ले जा सकते। तो एसेट मैनेजमेंट में आपका फायदा ये होगा कि आपको जहां बड़े पंप खरीदने हैं, और हम देखिए हम ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए 1500 5000 किलोवाट तक का सिंगल पंप हाउस भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो भी चैलेंज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये टूल है जिसको डिजायर मेंटेनेंस एंड टूल, ये इंटर टूल है। और इस टूल में हम क्या करते हैं, जहां जहां पे कोई सिस्टम लगना हो, इवन छोटे से छोटा पार्ट भी अगर हमको लगाना है, वो ऑटो शेड्यूल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि वहां पहुंचना है फलाना तारीख को, और वो पूरा मैन पावर सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है इस तरह से
प्रॉब्लम एंड रिपोर्ट जनरेशन उसने कितने बजे वो लगाया, कितने बजे उसने पार्ट रिप्लेस करा, उसकी पिक्चर और उसका जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन रहेगा हमेशा। ठीक है। ऑटो रूट एंड टास्क अप्रूवल, अब उसके पास किसी आदमी के पास 3 हैं तो कौन सा पंप पे पहले जाएगा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसको है, ये सब प्रिवेंटिव मेजर टूल्स हैं। आप ये सोचते होंगे कि इसको इतना पैसा करने के बाद बनाएगी कैसे, तो जितनी ये एफिशिएंसी है सिस्टम में, इन सब को ओवरटेक करते हुए जो रेवेन्यू होता है वही सेविंग है। इसके अलावा ये देखिए, ये नया सिस्टम है ना, ये हमारा है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ऐसा आपको टूल आपके मोबाइल पे मिलेगा। से फॉर एग्जांपल कोई आदमी बरेली में रहता है तो बरेली वाले के पास ये सिस्टम बरेली का ही रहेगा। कोई आदमी रायबरेली में रहता है तो उसके पास केवल रायबरेली का सिस्टम रहेगा। लेकिन हेडक्वार्टर में हो सकता है सबका देखना चाहें तो वो सिस्टम आपके पास रहेगा। तो डिफरेंट राइट से हम डिफरेंट ऑपरेटर लेवल पे ये राइट दे सकते हैं। तो जो रेड इंडिकेटिव है यहाँ, वो सब पंप बंद हैं, और जो ग्रीन है वो चल रहा है। तो आपके पास ये भी पता चल जाएगा किस सिस्टम में एडिशनल पंपिंग कैपेसिटी अवेलेबल है, किस में नहीं। ये सब सिस्टम जो है, क्योंकि देखिए आजकल आईटी का जमाना है और आईटी मॉडलिंग से कॉस्ट सेविंग हो सकती है। दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं, हम अलग नहीं है, वो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। तो ये सब चीजें इस सिस्टम से आपको पता चल जाएंगी। और कुछ लोग होता है, अरे भाई तुमने मुझे बताया नहीं, तो ये चैलेंज भी आपका खत्म हो जाएगा। बताने का चैलेंज ही नहीं है, आपको पता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है और किस टाइम चला रहा है, वो सब चीजें लॉग होंगी। अगर आप चाहेंगे तो सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला के लेवल पे और ऊपर के लेवल पे आप सब चीजें बाय रिपोर्ट देख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं। 2010 का प्रोजेक्ट था ये हमारा, और दीग में 5 साल किया, जोधपुर में चल रहा है 10 साल में, मई 2013 में शुरू हुआ, 10 साल का है। और अगर आप देखेंगे जितनी उनकी एनर्जी सेविंग है, वो सारी की सारी एनर्जी सेविंग आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपी टर्म्स बहुत ज्यादा आ जाती है। ये सब प्रोजेक्ट दिखाने के लिए हैं। तो एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है। पहला वाला फोटो जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये फोटो बता रहा है पहले पंप हाउस की पोजीशन ऐसी थी। हमने आपसे पैसे नहीं लिए पर हमने ऐसे कर दी उसको। ठीक है, पहले ऐसे पंप जोड़ते, हमको भी मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट का आदमी कैसे पंप कार जोड़ता है, वो ऐसे ही जोड़ता है, हम ऐसे कर देते हैं उसको, क्योंकि हमको नहीं सिस्टम में बिल्डिंग, लैंडस्केप, ये सब एडिशनल बेनिफिट हैं। अगर आप देखेंगे सिस्टम में, जहां जहां पे आपके पंप हाउस हैं उनकी कंडीशन बड़ी अच्छी नहीं रहती है, उनकी हाइजीनिक एंड सीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, जबकि आपके पंप हाउसेज और आपके लोकेशन बहुत अच्छी जगह पर होती है। तो ये सब चीजें एडिशनल बेनिफिट है, ग्रीन कवर है, उनका अपग्रेडेशन, वो सब चीजें को कंपनी के लोग करते हैं। हम ऐसे क्यों, हम बार बार अपने बारे में क्यों प्रचार करते हैं, जरूरी है बताना आपको। इसलिए क्योंकि हम नेशनल अवार्ड कंपनी है, इंडिया में नंबर 1 रेटेड एस्को है, ग्रेड 1 एस्को है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी द्वारा हमको ये अवार्ड मिला है एनर्जी कंजर्वेशन का, इसलिए हमारे पे ठप्पा लगा है, हम अच्छा काम करते हैं। हम नहीं कहते, सरकार भी कहती है। और चीफ मिनिस्टर राजस्थान देख लीजिए, या पावर मिनिस्टर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है ना, सीआईए का अवार्ड है। ये सब अवार्ड इसलिए क्योंकि हमारी सर्विस ऑफरिंग कंडेंस्ड है, एक जगह पर है, एक साथ मिलती हैं और एक ही कंपनी से मिलती हैं। तो ये सब चीजें का एडवांटेज होने की वजह से ही अवार्ड मिला है। इन दी एंड अभी हमारा फोकस ये कंप्लीट वाटर मैनेजमेंट पे अगर आप देखेंगे तो पानी यहाँ से आ रहा है, या यहाँ से आ रहा है, या यहाँ से आ रहा है, या चारों जगह से कहीं देख लीजिए, तो सब लगा के आपके इंटरनेट क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन होके ओवरहेड टैंक में जाएगा।
सिर्फ ये जो बॉक्स बनाया है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, आप जब तक हमको नहीं कहेंगे तब तक हम वहां नहीं जाएंगे। हम यहाँ तक आपको कंप्लीट ऑटोमेशन दे देंगे, कंप्लीट। ये पूरे बॉक्स में सिर्फ ये काले बॉक्स को छोड़ के नीचे वाले को ये भी हम कर सकते हैं। ये के लिए अगर हमें कहेंगे तो हम 10 साल की गारंटी वाला मीटर लगा देंगे और उसका ऑपरेशन और आपको हर महीने बिल बना के दे देंगे। लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे करंट कंडीशन में एस्को में इतना प्रोसेस कंप्लीट हम करके देंगे। ये सब कुछ हमारे प्रोसेस हैं जिसमें हमने बताया लोगों को कि हम क्या क्या काम करते हैं और इस एस्को मॉडल से क्या क्या हुआ है। तो एक पेपर में छपी हुई कुछ खबरें हैं और इन खबरों से आप पढ़ पाएंगे। हमने सोलर में भी ऐसे ही काम किया है। सोलर में हमने 3000 फ्लोराइजेशन यूनिट लगाए पूरे राजस्थान में, गांव में जाके, जहां पर कि हमने लोगों को कहा कि अब आपको पानी जो है कम से कम 3 पानी हम आपको देंगे, उसका पूरा फ्लोराइड हटा के दिया है। सोलर ऑपरेटेड है। सोलर ऑपरेशन के बाद से उस लोगों को बताया है कि भाई आपको ये पानी पीजिए। उनको 1000 लीटर पर घंटे का उनको पानी दिया है, टैंक लगा के दिया है। और ये जो फोटो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, इस टाइप के छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज सिस्टम लगा के दिए हैं। तो अगर आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ सिटी स्कीम में जाइए, ये भी चाहिए कि आप रूरल स्कीम में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप सोलर और एनर्जी को कंडेंस करके अगर आप पानी लेना चाहते हैं। और ये सब 10 साल के लिए, हाउ टू राइट ए टेंडर, हाउ टू प्रोवाइड ए सर्विस एंड कंपटीशन सबके लिए होना चाहिए, पूरा कंडीशन होना चाहिए। सर अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं तो मेरी 2 स्लाइड और हैं। ये एक सिस्टम है हैदरदास पंप हाउस का जो हमने लगाया है और ये ऑपरेशन में। मैं चाहूंगा कि एक दिन आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दें प्रशांत कि ऑनलाइन क्या दिखता है ना। जब अगली बार प्रशांत आपको मिले वो दिखाएं कि ये कैसे हम वाटर लेवल देख सकते हैं, हम रिजर्वायर का वाटर लेवल दे सकते हैं, इतना पानी उसके अंदर है। अभी आप देखिए रिजर्वायर में जो पानी जाता है, पंप मोटर चलता रहता है, पानी भर गया लेकिन मोटर चलता रहेगा, या उसके अंदर उसकी ओवरलाइन पाइपलाइन लगा दिए, पानी उसे फ्लो करके बर्बाद करेगा। तो ये सब चीजें सिस्टम में बंद हो जाएंगे। ये पूरा सिस्टम है, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 ओवरहेड लगे हैं, पंपिंग लगे हैं, और ये जो पंप चलता है वो आप बिल्कुल ऑनलाइन, ऑन योर हैंड, ऑन योर मोबाइल, आप कभी भी देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है तो आजकल का जमाना है, आपको नहीं जाना है, जैसे आज कोविड का टाइम है, आपको नहीं जाना है तो क्या पंपिंग सिस्टम रुक जाएगा? एसेंशियल सर्विसेज का काम है उस सिस्टम को ऑटोमेशन चलाना। कल को आप सेंट्रली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाना चाहें तो हम आप हेल्प कर सकते हैं पूरा कंट्रोल कमांड सेंटर बनाने के लिए, जो आप पूरी सिटी का, पूरे उत्तर प्रदेश का एक नक्शा आप अपने चीफ इंजीनियर ऑफिस में देख सकते हैं, और सिटी वाइज देख सकते हैं, लोकेशन वाइज देख सकते हैं, आइडेंटिटी बाय पंप देख सकते हैं, जो आप देखना चाहें दैट कैन ऑलवेज बी, बिकॉज ये तो आईटी है, जैसा आप दिखाएं, जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना सिस्टम सुदृढ़ होता जाएगा, है ना। ये है तरीका बताने का कि हम क्या करते हैं। ये पुराना पंप निकाल के नया पंप डालते हैं, उसको ये नहीं कह रहे कि हर चीज नहीं डालते हैं, कि चीजों को रिफर्बिश भी करते हैं। ओल्ड पंप हाउस निकाला, पंप निकाला, नया डाला और एफिशिएंट लगा। मैं आपको सिर्फ एक नंबर बता रहा हूं सर सुनील साहब, 1960 में जो पंप की एफिशिएंसी थी, मोटर की एफिशिएंसी थी, आज उससे 20% एफिशिएंसी ऑलरेडी ज्यादा है। तो आप उस एफिशिएंसी को आप अपने सिस्टम को ऑपरेट ही नहीं कर पाए अभी तक। ये तरीका है एस्को मोड में जाके उसको करने का। ये मैंने ग्राफ बनाया है, अगर आप देखना चाहें कि जो ग्रीन है वो क्वालिटेटिव नंबर थे, है ना, जो चाह रहे थे मॉनेटरी वैल्यू दी प्रोजेक्ट थी, उस मॉनेटरी वैल्यू के बाद जाके अचीव एनर्जी सेविंग देखी, ये हमारी एनर्जी सेविंग हम मानते हैं। इसीलिए ये भी कहा है कि अगर आप एडिशनल सेविंग होगी तो वो हम 10% के बाद सपोज हमारे को 20% हुई तो हम 20% का और 10% आपके साथ शेयर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन सर आपका बहुत बहुत ज्यादा आता है, वो आता है यार हम पैसा देंगे कैसे, हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से, हम इनको कंपनी को पैसा देंगे कैसे। सबसे बड़ा सवाल ये आता है।
तो अब ये सवाल को आंसर इस स्लाइड में आंसर ये कि आपने बिजली का बिल जो आता है आपको, है ना, जो बिजली का बिल आता है उसका एक एस्क्रो अकाउंट बनेगा। उस एस्क्रो अकाउंट का आप यहाँ डालते रहेंगे पैसा, और उसमें से सेविंग कर करके, अगर हमने कहा है जैसे कि 10% हम आपको गारंटी करके देंगे तो वो इस अकाउंट में चला जाएगा। आपके फाइनेंस वालों को ये सब प्रोसीजर मालूम है, इसको एस्क्रो अकाउंटिंग बोलते हैं। और इस एस्क्रो अकाउंटिंग से केवल पैसा जो आपका एग्जिस्टिंग पैसा उसकी से सेविंग आती है। ठीक है सर, मेरा अब प्रेजेंटेशन कंप्लीट है सर। अगर आपको कुछ सवाल है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत, इफ यू कैन जस्ट कोऑर्डिनेट एंड डू दी क्वेश्चन एंड आंसर। और अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो मैं, गौरव, सूरज, हम चारों लाइन में हैं, वी कैन आंसर वन बाय वन। प्लीज गो अहेड। थैंक यू संदीप जी। सो हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। अमित जी का, अमित शेरावत जी का सवाल है, डीएमटीएस सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? तो डीएमटीएस एक प्योर सॉफ्टवेयर है। और अमित जी का एक दूसरा क्वेश्चन है कि VFD in place of throttling valve, VFD is a drive system while throttling valve is used for controlling discharge. So how VFD is correlated with valve? Sandeep, would you like to answer this? आप बताओगे? Yeah, let me explain, sir. Oh, okay, Gaurav, आप बताइए, please. Namaskar everyone and welcome Kuril sir. Hope the intention behind the presentation is covered. We just wanted to present ki how ASCO can help to manage the entire water system for the public. And as my colleague explained, यहाँ दो concept हैं ASCO के. One is pure ASCO, जिसमें entire investment for all the pumps to rehabilitate or replace the entire pumps, control panels, SCADA. So that entire investment will be made by the ASCO company. And the second option is hybrid model. अगर आप pumping station के अलावा बाकी की जो आपकी assets है, for example overhead tanks हैं, कुछ pipelines हैं और आपके WTP plants हैं, उनको भी अगर साथ में देना चाहें तो एक hybrid model बन जाएगा. ASCO part will be absolutely invested by us and there is zero cost for operation and maintenance for the next 10 years. और हाइब्रिड मॉडल में आप जो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको आप एडिशनल पार्ट ऑफ द BOQ बना के पे करके कर सकते हैं. सो दिस इज द एस्को मॉडल एक्सप्लेन्ड. नाउ कम टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय मिस्टर अमित. सो अमित जी, देयर इज अ लॉ दैट इज कॉल्ड एफिनिटी लॉ. सो होता यह है, हम लोग जो थ्रॉटलिंग वाल्व यूज करते हैं, थ्रॉटलिंग वाल्व का मेजर यूज होता है कि ज्यादातर हमें समर्स के अंदर पानी का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, विंटर्स में कम होता है. और एट मैनी पंपिंग स्टेशन ये होता है कि हम एक ही पंप को दो डिफरेंट एरियाज को सप्लाई में यूज करते हैं, जहां जो हेड डेवलप होता है वो डिफरेंट होता है. तो इन दैट केस आप क्या, इन जनरल ये होता है कि हम उसको थ्रॉटलिंग वाल्व को ऑपरेट करके वो डिजायर्ड हेड वहां पे ऑपरेट कर देते हैं और उससे वाटर सप्लाई करते हैं. सो थ्रॉटलिंग करने से होता यह है कि आपका जो पावर कंजम्पशन है वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है. मोटर पे स्ट्रेस जनरेट होता है, मोटर का जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है और पंप का ओवरऑल लाइफ रिड्यूस हो जाता है. वहां पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज करते हैं हम लोग. वी जस्ट डू व्हाट वी डू, अगर हमें फ्लो कम करके हेड को इंक्रीज करना है, एज यू नो जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हेड एंड डिस्चार्ज, तो हमें जब भी हेड इंक्रीज करना होता है आइदर फॉर द डिफरेंट एरिया ऑफ सप्लाई, तो हम वहां उसकी फ्रीक्वेंसी को उतना ही % रिड्यूस कर देते हैं, या अगर इंक्रीज करना होता है हेड को तो इंक्रीज कर देते हैं. सो एफिनिटी लॉ में होता है कि जितना परसेंटेज से हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं, सेम परसेंटेज से उसका जो हेड है, जो फ्लो है, वो उतने ही परसेंटेज से रिड्यूस होता है और उसका जो हेड है वो स्क्वायर में रिड्यूस हो जाता है और जो पावर कंजम्पशन है वो क्यूब में रिड्यूस हो जाता है. और ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर हमको इंक्रीज करना है तो इसी तरह से वो इंक्रीज भी होता है. तो जो लॉस हमें थ्रॉटलिंग करने से हो रहे थे उतने ही ज्यादा मैनी टाइम्स बेनिफिट्स ये VFDs को यूज करने से हो जाते हैं. आई थिंक आई एम एबल टू सॉर्ट आउट योर क्वेश्चन अमित जी. ओके, थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चंस बाय एनीवन? भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि कुरिल साहब भी कुछ नहीं, प्रशांत मेरी रिक्वेस्ट है कुरिल साहब जरा 2 शब्द कहें प्लीज. मुझे ये जानना था, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम SCADA है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा आपका सिस्टम? कोशिश करेंगे सर. बस वो जो राइट्स जो भी एग्जिस्टिंग वेंडर है दैट हैव टू सपोर्ट अस. और इम्पोर्टेंट ये है सर कि जो भी पंपिंग स्टेशंस होंगे वहां तो हम पूरा ही नया SCADA डेवलप करेंगे.
अगर उसका कुछ एपीआई आपको एग्जिस्टिंग वाली स्क्रीन में चाहिएगा तो दैट वी विल शेयर। अदरवाइज हम लोग तो पूरा नया स्काडा डेवलप करेंगे और उसका मॉनिटरिंग आप मोबाइल पे और इवन वेब पे भी कर पाएंगे। मतलब हमारे स्काडा के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, वो सारे लाइव डैशबोर्ड आपको मोबाइल पे भी नजर आएंगे, वेबसाइट जो हम डेडिकेटेड देंगे उसके ऊपर भी नजर आएंगे। आपका ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, हार्डवेयर भी इसमें इंस्टॉल किया सर जाएगा? दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, हार्डवेयर भी रहेगा, जो आरटीयूज हैं वो भी हमारे रहेंगे, और जो सॉफ्टवेयर है स्काडा वो भी हमारा रहेगा, और सभी कुछ एस्को के पार्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई एडिशनल चार्जेस। Anybody, any further questions? Kuril sir, if you can hear us. Hello. For Lucknow town. Hello. जी 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 सर। Yes sir. We are Whatever. बोलिए सर। and we have presented all these things here Yes sir. at our that meeting. Yes sir. एस्को वाली मीटिंग में ये सब कवर किया था हमने। Yes sir. This is our principal secretary, Manoj Kumar Sabha, the principal secretary at that time. So Yes. We have almost all finished all the terms and conditions and technical and financial terms and conditions of the tender. And MD Saab is doing that. Sir. As soon as we decide, we may Yes, sir. invite a question, ESCO model tender for this Lucknow water supply. वंडरफुल Sir. Okay. So if all agri engineers, your मतलब your chair, क्या कहते हैं, mayors and city commissioners are ready for surface source water supply covered districts or towns. So kindly ask them, and if they are agree, then we can suggest them ESCO. सर And मेरा एक सवाल है, जब आप फिनिश करेंगे मेरा एक Sure, सवाल। it is also best. अच्छा So that we may go for other also. सर मेरा एक रिक्वेस्ट ये है, सर मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग का कन्विंस करना बहुत जरूरी है। देखिए मैं सहारनपुर से बात कर रहा था, क्योंकि हर जो सिटी की जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, तो आपके जुरिडिक्शन में जितनी भी सिटी आते हैं, अगर आप एक चिट्ठी मार्फत में लिखेंगे, हम आपको ड्राफ्ट कर कह सकते हैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में, कि आप इंसाइट करिए कि वो एस्को मॉडल में जाएं, तो हम उनको अप्रोच कर लेंगे। This Lucknow will be a pilot project, and it's Basically, successful. This will motivate them to go for the ESCO model for other towns, because ठीक है, ultimately this is the property of the local bodies. Sure sir. Absolutely, Sure, sir. absolutely, absolutely. Though the capital, I think capex is very there, and it is almost all nil. राइट सर। So सर Right, ये sir, मैं right, हम sir. यही तो बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि जब कैपेक्स नील है तो क्यों नहीं Yes. करते हैं, क्योंकि इसमें तो आपका सारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा Sir, है। basically, that's all. जी Since they are not paying, they are not paying regularly these I electric think bills. पूरी से इस हाँ। चीज के ऊपर So that is a demotivating factor. right, Power corporation is going to start all right, sir. So this will motivate you to save the energy also, यस and then यस such project will Right, very sir. very important हो जाएगी. Save energy भी एक majority of the all the local bodies and this municipal corporations. एब्सोल्युटली सर। right, sir. So you wait and एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा सर। जी। एक छोटी सी चीज, अब सर जो जैसे कोविड के साथ जो नए चैलेंजेस आए हैं, जहां पर बजटिंग एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है, वहां Yeah. पर अगर उस पर्सपेक्टिव से हम सारे लोग देखें तो यहाँ पर इवन ऑपरेशन मेंटेनेंस में एज लॉन्ग एज जो कीप द लाइट ऑन वाला फैक्टर है, जहां पर बिजली का बिल तो देना ही देना है इनको,
और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पानी की सप्लाई एक ऐसी सर्विस है जिसको करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी भी कॉस्ट कटिंग हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नहीं इन्वेस्ट करे सरकार अगले 1 साल के लिए, लेकिन मेंटेनेंस और जरूरी चीजें तो करनी है, क्योंकि वो सारी चीजें हम इन सारी चीजों में बाय डिफॉल्ट कवर कर रहे हैं और हम आगे 10 साल की बात कर रहे हैं। तो इस पोस्ट कोरोना टाइम में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा काम और लंबे समय तक कैसे कर सकते हैं। सिंस एस्को कंपनी डज ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड डज दिस थिंग, एक ही चीज है कि हमें बिजली का बिल जो भी आ रहा है वो तो आपने बताया चैलेंजेस हैं, तो एज वी हैव डिस्कस्ड दिस, लखनऊ के अंदर शुरू और लखनऊ में जैसे मंथ बिजली का बिल पे आउट होता है, इस टाइप की चीजें लखनऊ में करने के बाद वी कैन रीच आउट डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज एज इन वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली एनसी। तो उसमें सर आप लोगों का थोड़ा सा गाइडेंस और सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यू गाइस आर टेक्निकल एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोबेबली जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, दे आर नॉट दैट टेक्निकली कॉम्पिटेंट। दैट इज व्हाई जब भी नया इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो जल निगम करता है, because this is the civic body which is technically engineering in doing it. That is why we thought CONSO we will go with Jal Nigam and we will explain कि क्या benefits हैं, कैसे benefits हैं और ये कैसे फायदा पहुंचाएगा लॉन्ग टर्म में जल संस्थानों को, नगर विकास और ग्राम विकास विभागों को। तो यहाँ पर इस मैसेज को हम तो पास ऑन करेंगे ही करेंगे। जो डिपार्टमेंट में लोग हैं जो डे टू डे उन म्युनिसिपैलिटी से या नगर निगमों के साथ बात कर रहे हैं, अगर वहां पर जहां पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात की है वहां पर अगर एस्को के कॉन्सेप्ट रखा जाए तो हम उन म्युनिसिपैलिटीज तक पहुंच सकते हैं, हम उन लोगों तक भी जा सकते हैं। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, चूंकि आप लोग डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों से, तो इसके फायदे रियल टाइम पे नहीं समझाए जाए तो आई थिंक दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फ्रॉम एवरीवन्स पर्सपेक्टिव। Absolutely right. So just wait. Sure, sir. Post lockdown, I'll come and see you, sir. It's almost like 1.5 months, so I'll absolutely come and see you. So I think that's all on our side. In case if somebody has any additional questions, either you guys can. It is there on the. Amin, come on. है ना? I ये सवाल है Sandeep, why don't you अमिता, answer? what are the communication protocols in ESCO? Gaurav? हाँ, communication protocol. If you talk about the communication protocol, that may be different for different instrumentation. Once we speak about the flow meter, then RS-485 communication will be there. And we talk about pressure transmitter, 4 to 20 milliampere communication will be there. No, I'm talking about MPI, industrial Ethernet, or GPRS will be there. GPRS, 4G. Hello. Hello. Sir, GPRS communication will be there. It's GPRS. Sir. Any 2G to 5G, any technology will be supported by our RT. Okay. पर सर वो चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि आपको खाली एंड रिजल्ट देखना है। आपके पास तो स्क्रीन आएगी, आपको डेटा आएगा, तो कम्युनिकेशन आपका प्रॉब्लम ही नहीं है। एस्को के केस में 10 साल में मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको डेटा ला के देना। ये चैलेंज है। Hello. हाँ जी। What would be PLC size? Sorry. What would be PLC size in KB? KB size? Yeah. You know, मेरे ख्याल से less than 32 KB, less than 32 KB size. Hello. Hello. Your question is not clear, sir. Actually. 2 KB. We are talking about file size during transmission. Packet size. File size using.
Sir, in general, it's depend on the That frequency of the data transmission. It depends on the frequency of the data transmission. So generally, from 2 minutes to 5 minutes, if we set that frequency for data transmission, then it took around. In your model, small size PLC 2 kb or medium size PLC 32 kb, yeah, large size PLC 750 kb will be used or not? Sir, I think our PLC expert can Because reply you on that. if have There is a different model. There is a different model of the PLCs. If we talk about the 200 series, then the Ansubara kb, the 256 kb. Like we have 157, 12 and 9 and 2000 IOs. Then what size of PLC shall be used in your system? If you talk about the 2 IOs, Yeah. सर ये मतलब बहुत बड़ी आईओस की क्वांटिटी है, इसके लिए स्मॉल ग्रेड चीज पे अपन नहीं जाएंगे। इसके लिए अपन को जो हायर वो इसके लिए सुटेबल रहेगा। जैसे अगर हम स्नाइडर की बात करते हैं तो इसमें करीब आपका 340 बटन आता है। Whatsoever PLC IOs will be required, that will be provided by us, that will be installed by us, and the final intention is that entire data will be at your screen. And if your pumping stations are at in rural areas, you can say if submersible pumps are there, then that in that case also we will provide that kind of PLC and the entire But system we have online. already, hello. Yes, Hello. sir. We have already PLC in our panel. Then can we use those PLC? Yes, sir. We That can might be- to answer might That it. might be used. Might be used. Might be used. You just Yes. have to see the protocols and it can be used. Yes. You have to see the protocols and it can be used. We have If no there is- intent of. Please let me complete. We have no intent of replacing an equipment which is already functioning. If that equipment can serve Right. our purpose and can provide the same mechanism or by putting up some additional thing, it is always better to use. There is no need to scavenge a already existing equipment if it is functional. अगर एग्जिस्टिंग पीएलसी ओपीसी पे फ्री डाटा अपन को दे सकती है तो हम डाटा उठा सकते हैं वहां से एग्जिस्टिंग पीएलसी से। बिल्कुल। Right. मोडबस पे डाटा है, हम डाटा वहां से ले सकते हैं अपनी पीएलसी पे, नो प्रॉब्लम। For more technical question, what I would say, I mean, I will connect with all of you. और अभी ये जो presentation हमने किया, इसका एक deck भी मैं भेज देता हूँ और इसका live stream भी भेज दे रहा हूँ। और in case if anybody has further more technical questions, then I will connect with all of you individually. आप लोगों के जो भी questions हैं, मैं लेके सबका एक FAQ बना के I'll share with everyone so that everybody can be benefited out of this. एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हमारी जो कैटेगरीज हैं, जो पीएलसी के मॉडल जो हमारे ब्रांड के मॉडल्स हैं, वो कि अगर छोटे से लेके अगर सर जो बात कर रहे हैं टूथ के लिए, तो हर एक चीज हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास एक सेलेक्टेबल मॉडल। तो अगर आपकी कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस हैं, ब्रांड यूज करेंगे आप जो ब्रांड यूज करेंगे वो एबीबी सीमेंस या मोटोन वालों के लिए किसका यूज करेंगे? सर वो हमारे स्पेसिफिक रहेंगे। इट्स डिजायर ओन प्रोडक्ट, इट्स डिजायर प्रोडक्ट विद नेम ऑफ एक्वालॉजिक्स, सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ विल बी विद अस। लाइक वी आर यूजिंग स्नाइडर। सर कंपैटिबिलिटी है हमारी कि हम उनको यूज कर पाएंगे। अगर यूज नहीं भी कर पाएंगे तो हम उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जल निगम से या जलकल से नहीं ले रहे हैं। सो यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट। हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे पीएलसी से कनेक्ट हो जाए ताकि हमारा कैपिटल कम लगे, लेकिन अगर वो नहीं भी हो पाएगा तो देयर इज नो इशू। we will provide the complete solution from the hardware and software end. Right. So I think let me take the closing note. And we heard everyone, and thanks again all of you for joining
this session. I think, I hope this was helpful for all of you to understand ESCO concept and how ESCO is going to help, especially after COVID-19 world where finance would be a big challenge. How we can use existing resources, how we can use this as an opportunity for betterment, for saving energy as well as saving water. So let's use this as an opportunity and try pushing ESCO, which is going to which is going to help Jal Nigam as well as municipalities as well as Nagar Nigam. I will personally connect with all of you, and then whatever questions you guys have, I'll take it. And once lockdown opens, I'll try to connect with all of you individually, personally, so that in case if you have any further questions on ESCO or automation or anything related with, we have talked about MTS, we have talked about, so we have, as part of ESCO, we provide all these automation features. We have also other products and automation features, so we can talk about it. There was a specific reason why we have focused on ESCO, but in case if there are other needs as well, we can talk about that as well. So I'll personally connect with everyone and I'll talk about all extra products. Again, thanks everyone for joining, and special thanks to Kreel for allowing us for this session, and a big thanks to all of you. Thanks again. Thanks again. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? Nothing. Okay, thank you, sir. Yes, okay. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Can I request Desire staff to stay back, please, if you can? We'll reconnect. We will reconnect. Okay. Thanks everyone. Thanks everyone.